Hello friends, once again I welcome all of you. Today we are going to talk about isomerism in complex compound. This is a very important concept for competitive exam point of view. So let's start. What is isomers? You have studied in organic chemistry. Isomers मतलब molecular formula same होता है and they have a different structures. They are said to be a isomers. So here isomerism जो है complex compound के अंदर दो टाइप का होता है. It is of two type. Structural isomers and stereo isomers, just like your organic. अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये फर्दर क्लासीफाई होता है 4 कैटेगरी के अंदर, स्टीरियो फर्दर क्लासीफाई होता है 2 कैटेगरी के अंदर. तो पहले हम लोग स्ट्रक्चरल को देखते हैं. नाउ सी the structural isomer is further classified into 4 category. We'll see one by one. So the first one is a linkage isomers. क्या linkage isomer. First one is a linkage isomers. Second one is we are going to talk about here hydrate isomer, or it is also called as a solvate. Third one we are going to talk about coordination isomers. फोर्थ वन जो है वो है आयोनाइजेशन. ठीक है. स्टीरियो जो है ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है आपका योर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड योर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, that is dextro and the levo, and this pair is called as a enantiomer. इस पेयर को हम लोग बोलते हैं enantiomers. Are you getting? Enantiomers are non superimposable mirror image. What is enantiomer? Non superimposable mirror image. Geometrical isomerism is of two type, cis and the trans, and this pair is called as a diastereomer. It's called as a diastereomers. So now we'll start with the linkage isomer. What is a linkage isomer? One by one we are going to see. Okay, so first, what is a linkage isomer? For understanding the linkage isomerism we should have an idea of ambidental ligand. So see, linkage isomers. अभी ये जो लिंकेज आइसोमर है इसके अंदर आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड का आइडिया होना चाहिए. सो व्हेन द लिगेंड लाइक NO2 CN minus SCN minus are getting connected to a metal, so they have a 2 point of attachment. Once the nitrogen can make a bond with the metal and the other time oxygen. So if they are having a two different atoms getting connected to a metal at 2 different time, तो वो जो formula बनेगा वो आपका linkage isomer का formula बनेगा. Example, if you got a cobalt here and then I have here NH3 5 ligand and then I am making here ONO attached and then Cl2, and I can say that CO NH3 5, this is NO2 and then again here Cl2. तो एक बार ऑक्सीजन ने अटैचमेंट अपना किया है कोबाल्ट के साथ में और एक बार नाइट्रोजन ने किया है. बेसिकली ये ONO, देयर इज़ NO2 ओनली. तो लिंकेज आइसोमर जो होता है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड ही आपको फॉर्म करके देगा. So I hope you got the point of linkage isomers. Now moving ahead with the hydrate isomer, or I can say the your solvate. तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होता है. क्या होता है? इंटरचेंज होता है विद द नेगेटिव आयन विच इज़ प्रेजेंट आउट ऑफ द स्फीयर, दैट इज़ योर प्राइमरी वैलेंस. So the second one, hydrate, or I can say the solvate isomers. हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स. अभी इसमें होता क्या है? सो व्हेन देयर इज अ interchange
when there is a interchange of water molecule H2O molecule with negative ion with नेगेटिव आयन विच इज़ प्रेजेंट आउट ऑफ द योर स्फीयर. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे लिया है CrH2O6 Cl3, इसका कलर जो होता है ये होता है वॉयलेट. एंड नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, वन Cl विल गो इनसाइड एंड वन वाटर विल गो आउटसाइड. दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. CrH2O 5 times, 1 Cl goes inside, so 2 Cl and then water. So if I try to correlate these two complex, they are having the same molecular formula, but the difference is coming, there is a replacement of, or I can say there is a interchange of water molecule. The water molecule goes inside and the ligand comes outside, something like happening. So that is called as a hydrate or solvent isomer. If the water is there, then it is a hydrate. If the any other solvent is coming into the picture, then we call it as a solvent isomers. Now moving ahead with the coordination isomer. So what is coordination isomer? We'll try to understand that. Now see, we'll take a bimetallic complex here. Coordination isomers. Now what is a coordination isomer? For understanding this, we'll take a bimetallic complex. Bimetallic complex and distribution, and the distribution of ligand gets changed. मतलब मेटल वाला लिगेंड, दो मेटल के कॉम्प्लेक्स लेंगे हम लोग और दोनों के अंदर क्या होगा, लिगेंड को हम लोग एक्सचेंज कर देंगे. एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे दिया गया है कॉपर एंड देन वी गॉट हियर NH3 4, then we got a platinum Cl4. This is a bimetallic complex. Now what we are going, the Cl is coming here and ammonia is going here, so we'll have a CuCl4 and PT NH3 4. Are you ready? So when they ask you what is the relation between these two complex, so I will call they are the coordination isomers, because the ligand is getting exchanged with respect to their metal. Are you getting? तो यहाँ पे कॉपर था, उसके साथ में लिगेंड अमोनिया था. अभी सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में लिगेंड क्लोरीन आ गया जो कि इसका पार्ट था, और इसके साथ में क्लोरीन के साथ में प्लैटिनम जो था वो अभी प्लैटिनम अमोनिया के साथ में आ गया. तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. नाउ मूविंग अहेड, विल study the last one, that is a ionization isomer. So what is the ionization isomer? See, ionization isomers. Now what happened in this case of ionization isomer? The coordination sphere have a same molecular formula, but the different ion is getting produced in the solution. Are you getting? अब आयन तो हमको दिखता नहीं है, बट उसके साथ में हम लोग कोई नेगेटिवली चार्ज वाला उसके अंदर ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला, तो वो आपको वाइट कलर का या येलो पीपीटी कुछ तो फॉर्म करके देगा. सो दैट्स हाउ वी मेक अ कंक्लूजन देयर वाज समथिंग प्रेजेंट. सी विद द एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but forming different ions in solution. Are you getting? Are called as ionization isomers. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आपने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया है, वी गॉट हियर अमोनिया 5 and there is a 1 Br inside the coordination sphere, and out of the sphere there is a sulfate. Now this sulfate come inside and the Br goes outside. We are getting another complex, that is a CO NH3 5 SO4 and then Br. As we are aware of that, the sulfate is present in the coordination your ionization sphere, तो इसका हो जाएगा डिसोसिएशन और ये आपको आयनिक फॉर्म में फ्री मिल जाएगा. एंड इफ़ यू ऐड हियर BaCl2, so BaCl2 when you are adding, this will give you the BaSO4 that is a white color.
नाउ हियर इफ़ यू ऐड समथिंग लाइक AgNO3, सो AgNO3 आपने ऐड किया तो ये आपको फॉर्म करके देगा AgBr. क्या फॉर्म करके देगा? AgBr. दिस इज़ वेरी लाइट येलो कलर. Okay, so I mean to say that we are having the ions, different ions, when the arrangement is getting slightly differ, when the ion goes inside and the other ion goes out of the your coordination sphere. So if such kind of arrangement is getting formed, we call them as a ionization isomers. I hope you got the 4 different concept regarding the structural isomers. So they can give you the 2 pair and they ask you what is the relation between these 2 isomers. If you are thoroughly, if you have understood thoroughly, then you can solve this MCQ. Now moving ahead with a very important part of this concept, that is a chapter, that is a stereoisomers. So stereoisomer is also called as a space or 3-dimensional. Are you getting? So let's understand that also. So for stereoisomer, first we'll understand for stereo isomers, first we will understand or will consider coordination number 4 complex. Coordination number 4 complex. As we are aware of that, coordination number 4, if we got a complex, so coordination number 4 can give you 2 kind of geometry, that is a tetrahedral, and we can have a square planar. I hope you are getting. So right now I'm going to talk about the tetrahedral, and in the tetrahedral we are able to have optical isomers or geometrical isomers. We'll try to understand that. So see, tetrahedral complex. So tetrahedral complex. So first we'll try to find out the geometrical isomerism. If I have this, then I have a 4 bond here, A, and I have given the labeling. This is your A, B, C, and then D. If you find this is the chiral center, yes, it's chiral. Now if I ask you question, A जो आपका बॉन्ड है, देयर इज़ अ बॉन्ड एंगल क्या होता है यहाँ पे 109 डिग्री. सो ए के 109 डिग्री पे कौन सा आपको नेबरिंग एटम मिलेगा? ऑल बी, सी एंड डी ऑल आर प्रेजेंट एट 109 डिग्री ओनली. इफ़ आई ट्राई टू स्वाइप, मैंने इसको इधर लिया और इसको इधर लिया, तो अभी ये ए की जगह पे कौन आ गया? फिर से स्वाइप करने के बाद ही ए की जगह पे वही आएगा, बी सी डी आएगा 109 डिग्री पे. सो डू यू फाइंड देयर इज़ अ न्यू अरेंजमेंट इज कमिंग आफ्टर स्वाइपिंग द 2 पोजीशन? नो. इट मीन्स देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहीं पे बनता है जब आपने 2 लिगेंड को स्वाइप किया है और आपको डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहा है. आर यू गेटिंग? इफ इट इज़ नॉट कमिंग, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सो फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, no geometrical isomer, no geometrical isomers. जस्ट ये दिमाग में रखना. अच्छा, अब फिर हमको क्या बात करनी है? नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड हैव अ कायरल सेंटर एंड इट्स मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो इसका हम लोग मिरर इमेज ले लेते हैं. सी, इसका अगर आपने मिरर इमेज लिया, एक गोल्डन रूल होता है, मिरर के नियर वाला एटम नियर होता है और फार वाला एटम फार होता है. सो विल मेक अ सिमिलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट ओनली. दिस इज ए, ये आपका दिस एंड दिस. अब ये नियर था तो यहाँ पे डी आएगा, देन सी एंड देन बी, और यू कैन से दिस, ये हो जाता है फ्लिप. ऐसा भी आप लिख सकते हो. सो नियर वाला एटम नियर है और फार वाला एटम फार है. दिस इज गोल्डन रूल. Now when you try to superimpose, it doesn't gets matched. It means it is a non-superimposable. ये क्या है आपका? Non-superimposable. So when the 2 image is non-superimposable, then they are like enantiomers and they are like they exhibit optical activity. So tetrahedral complex is going to give you the optical activity. Are you getting the point or not? So they are like a D and L, D and
one will be dextro and other will be the levo. So for optical activity there should not be POS, plane of symmetry नहीं होना चाहिए. अगर आपने मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी कराना है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड नॉट बी अवेलेबल. सो आई अगेन रिपीट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको दो ज्योमेट्री मिलती है, टेट्राहेड्रल एंड द स्क्वायर प्लेनर. सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल विल नॉट गिव यू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. टेट्राहेड्रल विल ओनली गिव यू द दिस योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. नाउ मूविंग अहेड विद द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब वो कैसा होता है, वो प्लेन में ही है. स्क्वायर एक प्लेन में बनता है. जैसे आपके पास एक बुक है, आपने जो नोटबुक ली है या कुछ भी है, स्क्वायर प्लेनर की बात कर लेते हैं. स्क्वायर प्लेनर, so in the case of square planar you will find there is a metal present at the center and we have a opposite position, that is a trans, and I have A, B, C and the D, 4 ligands. I am connecting them. See if I ask you A के 90 डिग्री पे कौन से एटम्स हैं, B और D है, और 180 डिग्री पे कौन है, अपोजिट एकदम C है. अच्छा मैंने इसको क्या कर दिया, स्वाइप कर दिया. A को मैंने B के साथ में क्या कर दिया, स्वाइप कर दिया. सो वी आर गेटिंग द न्यू अरेंजमेंट. दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज D. नाउ विल ट्राई टू सी देयर इज अ डिफरेंट ओरिएंटेशन और डिफरेंट एटम्स आर कमिंग. नाउ A के जो है 90 डिग्री पे अब कौन आ रहा है भाई, C और B आ रहा है, C एंड, और 180 डिग्री पे कौन आ रहा है, D आ रहा है. सो कैन यू सी देयर इज अ डिफरेंट एटम्स कमिंग when you are flipping the two ligands. It means there is a possibility of GI. It means there is a possibility of GI. After changing the ligand we are getting the different atmosphere of the ligand. It means geometrical isomerism is possible. Are you getting? पक्का. तो टेट्राहेड्रल के केस में जो था आपका optical isomerism possible था, geometrical isomerism was not possible. But in the case of square planar, right now we got a geometrical isomerism possible. Now the question comes, is it optically active or not? So for optically active there should not be POS, plane of symmetry, या any type of symmetry नहीं होनी चाहिए. तो अगर मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर दिया. If I give you the example of square planar, now I have a model, try to understand. This is basically the your octahedral का model. If I remove this bond, now you try to understand, there is only 4 bond, 1 2 3 4. So if I cut it in this way, the whole molecule, that is upper and the lower part, will be the equivalent. It means there is a symmetry coming into the molecule. So due to the presence of symmetry, the molecule is not able to exhibit optical activity. This is planar. Are you getting? आपने इसको ऐसे यहाँ पे रख दिया, there is a 1 bond, इसको आपको देखना नहीं है, ये इमेजिन कर लो. तो आप ऐसे इसको कट करेंगे ना, this horizontally, so this will be getting cut into the 2 equal part. आपने यहाँ से कट करना है. अच्छा, तो ये जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा. रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट इज़ द रीज़न, प्लेन ऑफ सिमेट्री. डन. ओके, नाउ मूविंग अहेड इन दिस कॉम्प्लेक्स ओनली. अभी हम लोग स्क्वायर प्लेनर का ही बात करते हैं. इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना, ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री द मॉलिक्यूल इज नॉट एबल टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री. अच्छा, अब हम लोग ज़रा देखते हैं. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 लिगेंड लेंगे, डिफरेंट लेंगे एंड ऑल विल सी. हाँ, नाउ विल सी हाउ टू फाइंड आउट पॉसिबल आइसोमर्स. अब मैंने बता दिया स्क्वायर प्लेनर में तो आपका ऑप्टिकल तो बनता नहीं है, ज्योमेट्रिकली बनेगा. तो अभी उसमें कैसा है कि 4 लिगेंड सेम आएगा, 2 सेम रहेगा, 2 डिफरेंट रहेगा, 3 सेम रहेगा, 1 डिफरेंट रहेगा, मतलब पॉसिबिलिटी बन सकती है. सो बेस्ड अपॉन दैट पॉसिबिलिटी वी आर गोइंग टू सी. फर्स्ट, इफ़ यू हैव अ MA4, all the ligands are, so this is the first possibility I can say. Second possibility I can consider here MA3B. Third possibility I can take MA2B2. Are you getting?
Then I can take another possibility like M. Fourth possibility I can have M. This is your A3B3, तो वही मैं AB3 कर देता हूँ तो वही रहेगा, उसको छोड़ दो. If I take here ABCD, all four different. So now how we are going to proceed for such kind of your complexes? All are monodented here. Now see, तो for the first one I have written here MA4. तो सबसे पहली बात क्या, आपने सेंट्रल मेटल बनाना है, स्क्वायर प्लेनार है, तो ये आपका अपोजिट अपोजिट हो गया. यहाँ पे ए एंड ए. अच्छा, आपने अगर कोई भी पोजीशन को स्वाइप किया तो एक्चुअली कैसा, ये एक ही आपको स्ट्रक्चर देने वाला है. स्वाइप करने के बाद आपको नया स्ट्रक्चर तो मिलने वाला नहीं है. इट मीन्स देयर इज़ अ नो जी आई का पॉसिबिलिटी इज़ कमिंग हियर. नाउ आफ्टर कमिंग टू दिस विल हैव अ मेटल हियर एट द सेंटर एंड दिस इज़ अ ligand A and B. Now what is going to happen? If you swipe anyone, इसको मैंने इधर स्वाइप किया तो B का 90 डिग्री पे A और A है और 180 पे A है B के. तो जब ये इधर जाएगा, आर यू गेटिंग, दिस विल गो हियर, तो इसके यहाँ पे ये आ गया और ये इधर आ गया, तो B के फिर 90 डिग्री पे A और A ही है और 180 पे है, तो इसका मतलब नो GI का पॉसिबिलिटी. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? और वैसे इसका ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है कि आपने दो लिगेंड्स को पेयर में ले लेना है. तो AA और AA यही सेट बनेगा ना, इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है. इसके अंदर क्या बनेगा, AA एंड AB, दैट्स ऑल. नो, वी कैन नॉट हैव एनी अदर पॉसिबिलिटी. अगर आप जो बनाओगे तो वो यही रिपीट हो जाएगा. अब इसका देख लो, इसका पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, दो बनेगा, AA BB AB AB, यही बनेगा ना. दो लिगेंड को आपने साथ में लिया है, AA B और B, then AB AB. So this is the two possibilities. So here the GI is going to be 2. GI is going to be 2. Are you getting the point or not? This is a shortcut how we are able to get it. Now like ये क्या हो जाएगा आपका, cis and trans हो जाएगा ना, cis and trans. Like I had given you in the beginning, M अगर आपने लिया है, like platinum है आपके पास, Cl2 and NH3 twice. दिस इज़ अ सिसप्लेटिन. अगर ये सिसप्लेटिन है तो वो एज अ एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. और आपका एक दूसरा होता है ट्रांसप्लेटिन, और हम लोगों ने देखा था सिसप्लेटिन इज़ यूज एज एंटी कैंसर ड्रग. तो ये कैसा है, ये वही कॉम्प्लेक्स है ना, A2 और B2 है, 2 सो क्लोरीन 2 है, अमोनिया 2 है, तो ये इसी का एग्जाम्पल बनेगा. तो दो बनेगा सिस एंड ट्रांस. क्या बनेगा, सिस एंड ट्रांस. आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. नाउ मूविंग अहेड विद द MABCD. तो इसमें पेयर बना दो ABCD. अब A को एक B के साथ लिया, एक बार C के साथ में लेना और एक बार D के साथ लेना है. सो AC एंड BD. नाउ AD एंड BC, ये तीन पॉसिबिलिटी बनेगी. सो हियर GI इज इक्वल्स टू 3. इफ़ दे आस्क यू लाइक यू गॉट अ मेटल हियर एंड देन यू हैव Cl NH3 water, just we are putting example, and then I can have one more here like a fluorine. Just imagine you got this complex and they are asking you what is the number of geometrical isomerism possible here. ये मैंने जस्ट एक फॉर्म किया है, तो यही होगा आपका geometrical isomerism. यहाँ पे कितना बनेगा, 3 बनेगा. दिस इज़ द JEE का क्वेश्चन, यह आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, पेपर में यहाँ आके गया है JEE के एग्ज़ाम में. So I hope you got the concept how to calculate square planar. और square planar में as I told you there is a no possibility of optical isomerism because there is a plane of symmetry coming into the picture. So which we have already seen how we are able to get the plane. आप उसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे ना, ऐसे स्लाइस करेंगे, ऐसे राइट से लेफ्ट जाएंगे या फिर राइट टू लेफ्ट आइए या लेफ्ट टू राइट जाइए, तो वो मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा. ओके, सो नाउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब हमारे पास 6 पोजीशन होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 लिगेंड आपको कनेक्टेड मिलेंगे. अब इसमें कैसा है ना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है और नहीं भी दिखा सकता है. तो मेजॉरिटी केसेस में कैसा वो नहीं दिखाता है, क्योंकि आपका जो ट्रांसपोजिशन है ना वहाँ पे सेम लिगेंड आ जाएगा तो सिमेट्री आ जाती है. सी फॉर octahedral
कॉम्प्लेक्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. So when the coordination number is 6, we need to here we will find out GI and OI, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दोनों पता करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका योर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या क्या यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जैसे कि मैंने बताया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो आपका पॉसिबिलिटी होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके निकालते हैं. द फर्स्ट आई विल पुट द ज्योमेट्री का, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. ये ट्रांस हो गया, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज ट्रांस. इफ़ यू पुट द हियर लिगेंड 1 2 3 4 5 and 6. now you connect this is the one. अच्छा, अभी इसमें कैसे है, अगर ये और ये लिगेंड लाइक 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4, इमेजिन कर रहा हूँ मैं, ये सेम नहीं है अगर, और आपने ऐसे कट किया, तब इसमें क्या होगा, ये मतलब बेसिकली कैसा है ना, कभी भी ट्रांस वाला लिगेंड सेम बनना ही नहीं चाहिए आपका. मैं तो ट्रांस पोजीशन यहाँ पे 1 and 4 है, 2 and आपका 5 है, 3 and 6 है. तो ट्रांस पोजीशन पे ना कभी भी सेम लिगेंड आना ही नहीं चाहिए किसी भी ट्रांस के ऊपर. तो ये प्लेन यहाँ पे फिलहाल ये वाला प्लेन बन रहा है और ये 1 and 4 ट्रांस जा रहा है. अच्छा, अभी बच्चा सेकंड भी सोच सकता है. और वेटिंग सेकंड केस क्या हो सकता है इसमें, देखिए ध्यान से. 1 दिस इज ट्रांस, दिस इज ट्रांस, दिस इज ट्रांस. नाउ द किड्स आर थिंकिंग कि वी कैन हैव अ ट्रांस फॉर, अभी तो मैंने 1 and 4 का ट्रांस लिया था, अभी हम लोग बात कर लेते 2 and 5 का ट्रांस. तो जब आप 2 and 5 को ट्रांस इमेजिन करेंगे तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 6, तो अभी मैं इसको प्लेन बना देता हूँ. समझ में आ रहा है? ये ट्रांस हो गया. अभी फ़िलहाल ये वाला ट्रांस है ना, प्लेन आपका दिख रहा है, ये बॉक्स प्लेन है आपका. 1 and 4, there should not be the same ligand present on 1 and 4, anywhere it should not be there. So I am trying to explain you there is a transposition. So I have given you 1 and 2, 1 and 4, 2 and 5. Now the third one you see, we can have a this your इसको और इसको देख लेते हैं, ठीक है. 3 and 6 को ट्रांस देख लेते हैं. तो इसमें ज़रा देखिए, आपने मेटल बना लिया, दिस इज़ ट्रांस, इसका ट्रांस, ये इसका ट्रांस. अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 3 and 6 को ट्रांस इमेजिन किया, तो ये 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया. बाकी सबको 1 2 3 4 कर दो. 1 2 3 4 5. now this is trans, so this is coming as a plane. are you getting? अच्छा, सो कभी भी ना ट्रांस वाली पोजीशन पे लिगेंड आपका सेम आना ही नहीं चाहिए. पहली बात, अगर सेम नहीं आ रहा है तो एक और केस बनता है, वो मैं भी डिस्कस करूँगा. तो 1 and 4 ट्रांस, 2 and 5 trans, 3 and 6 trans. The trans ligand should not have a same. If they are any one of them is coming, molecule is going to be optically inactive. Are you getting? मतलब या तो ये सेम हो गया, या तो ये सेम हो गया, या तो ये सेम हो गया, कोई भी एक सेम हो गया ऊपर और नीचे का, तो समझ जाना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ध्यान से समझना. If I write metal at the center and this is a trans, now we'll have a different, this is your A and here A, this is cis, are you reading, and here B and this is B, this is cis. Now it is C and this is D. Now try to correlate this. इसको आपने स्क्वायर बना दिया. अब मेरे को बोलो ये जो ट्रांस है ये डिफरेंट है, AB, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट. तो बच्चा बोलेगा सर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है. तो अभी बच्चे को यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा. क्या गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से देखना. अभी ये अगर आपने ध्यान से ये मॉडल को देखा, ग्रीन वाला मॉडल देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए. तो ये जो है बेसिकली येलो जो स्टिक दिख रही है आपको, येलो दिस एंड यहाँ पे भी येलो है, दे आर लाइक अ C एंड दिस इज़ अ D. आर यू रीडिंग? तो ये आपका जो है ना 2 ग्रीन बॉन्ड आपका A है और ये 2 ग्रीन बॉन्ड आपका B है, ये प्लेन में है. अभी मैं क्या करूँ, अगर मैंने मॉलिक्यूल को ऐसे कट किया ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे A और D जाएगा,
यहाँ पे ए और बी जाएगा, ये जब बीच में से कट होगा तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये तो पूरा का पूरा इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट जा रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब देयर इज़ अ POS, देयर इज़ अ POS। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये आपका जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा एंड ऑल दी लिगेंड्स आर हियर मोनोडेंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, all the ligands are here monodentate. So I was trying to explain you, is there any possibility of this your optical isomerism in the octahedral complexes? There is a possibility comes, बट उसके अंदर भी बहुत सारा ये टर्म्स एंड कंडीशन है, बट नॉर्मली फ़िलहाल तो हम लोग ट्रांसपोजिशन को देख लेते हैं। अगर लिगेंड सेम हो गया तो आँख बंद करके बोल देने का वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो अगर यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट हो गई। अब हम लोग बात करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड में आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो ज़रा चेक करते हैं। नाउ सी, तो आपका ये मेटल हो गया, दिस इज़ ट्रांस पोजिशन, दिस इज़ ट्रांस एंड दिस इज़ ट्रांस। आपने क्या किया, बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ योर टू मोनोडेंटेड लिगेंड A एंड B। अच्छा, सेकंड केस क्या बन सकता है आपका, दिस इज़ ट्रांस ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस, ये आपका और ये। तो बच्चा बोलेगा सर ये आपका तो ऐसे कट करोगे तो सिमेट्री हो सकती है। यस, इट मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो होने के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कायरल सेंटर। क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। जैसे ये आपका इथिलीन डायमीन आपने ले लिया, मान लेते हैं, तो ऐसा कोई यहाँ पे जो आपका बाइडेंटेड लिगेंड है उसके अंदर कोई ऐसा एटम आ जाए जो कायरल है, तो वो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। और इसमें कैसा सिमेट्री तो सवाल ही नहीं आ रही है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, ये मे और मे नॉट दिखाएगा। थर्ड केस क्या हो सकता है, दिस इज़ ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये आपका हो गया दिस एंड दिस। तो ये मतलब क्या है, तीन अलग साइड में डायरेक्शन में जा रहा है। इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ये आपको हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने वाला है, दिस वन। आर यू गेटिंग, पक्का? सो आई हैव गिवन यू हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब मैं बात कर लेता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बन सकता है ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो उसको ज़रा समझते हैं विद द एग्जाम्पल। See, if you have an example like MA4, आपके पास एग्जाम्पल है MA4B2, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको प्लस माइनस चार्ज कुछ भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, ये B2 है ना, तो B2 मतलब इसको मैं रेफरेंस एटम समझूंगा। क्या समझूंगा, रेफरेंस एटम। तो रेफरेंस एटम ये B2 को मैं क्या करूँगा, सीस या ट्रांस भी रख सकता हूँ। अब ये सीस क्या होता है, 1,2, 3,4, 5,6, ये जो पोजीशन होती है ना, जैसे कि आपने ये लगा दिया मेटल, ट्रांस 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 ट्रांस, 1 2 3 4 5 6, ये दो 1 2 6, 2 3 भी 6 बनेगा अगर आपने उसको ऐसे साथ में कपल करा है। तो क्रॉस वाला ना 1 and 4 ट्रांस बनेगा, 2 and 5 ट्रांस बनेगा, 1 and 6 ट्रांस बनेगा। so these two this two this two this two this two this two together they are treated as a cis, they are treated as a cis। so तो अभी मैंने बात कर लिया B2, तो B2 रेफरेंस एटम है, आप उसको सिस पे रखिए और आप एक बार उसको ट्रांस पे रखिए। तो जब आप उसको सिस पे रखेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, जरा ध्यान से समझते हैं। ये आपका मेटल हो गया सेंटर में, दिस इज ट्रांस 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 एंड ट्रांस। तो आई विल फर्स्ट पुट इन द सिस, ये सिस पे चला गया, बाकी सब जगह पे ए लगा दो, ए ए ए ए। अच्छा, अब यहाँ पे आपको देखना है ये ट्रांस जो है आपका डिफरेंट है, दिस इज़ डिफरेंट एंड दिस ट्रांस इज़ योर सेम। तो अभी कैसा ना, प्लेन क्या हो गया आपका, वही देख लें, ये आपका प्लेन हो गया, बराबर है। तो ये और ये तो क्या हो गया आपका, सेम हो गया ना। सो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं हम इसको।
अब दूसरा केस क्या बन सकता है, इसको ट्रांस ले लेता हूँ मैं, दिस इज़ मेटल हियर, बी और बी किधर आ गया आपका, अपोजिट आ गया, बाकी सब जगह पे ए और ए लगा दो, ए ए एंड ए। सो हियर इफ़ यू जस्ट मैच इट, तो ये तो अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये ऊपर और नीचे ट्रांस हो गया, ये भी ट्रांस हो गया, ये भी ट्रांस हो गया, बट हमको जो पॉसिबिलिटी जो है वो कितनी मिल रही है, तो A4B2 का हमारा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है A4B2 का हमको कितना मिल रहा है भाई, 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमको ऑप्टिकल GI जो बनेगा, GI कितना बनेगा, 2 बनेगा। अभी मैं यहीं पे ट्रिक भी बता देता हूँ, ट्रिक कैसे हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्या करना है, 2 लिगेंड का ना आपको सेम पेयर एक साथ रखना है, 2 लिगेंड का पेयर आपको साथ में रखना। तो जैसे कि यहाँ पे क्या किया आपने, ए और ए को ले लिया, इसमें ए और ए के साथ में आप क्या ले सकते हो, ए 4 है तो ए फिर से ले लिया आपने। नाउ व्हाट इज़ रिमेनिंग, बी एंड बी इज़ रिमेनिंग। सो नाउ व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट, ए बी एंड देन ए। तो ये ए रखो साथ में, फिर ए बी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक और ये, यही 2 केस बन सकता है। तो आपने क्या करने का, ये ट्रिक है कि कितना इसमें GI का पॉसिबिलिटी बनता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 2 लिगेंड का सेट बनाना होता है। और इसमें भी ट्रिक कैसा है कि जब 2 लिगेंड सेम साथ में आ गए ना, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर 2 डिफरेंट लिगेंड हैं तो वो 2 डिफरेंट लिगेंड ना दोबारा साथ में नहीं आना चाहिए। जैसे ये AB है, डिफरेंट लिगेंड का सेट है, तो वो डिफरेंट लिगेंड वाला सेट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो गया तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा 2 सेम लिगेंड का सेट बनाया, तो ये अपने आप में पहले ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये आपको GI कितना गया, 2। ये ट्रिक है, ये एक्चुअल में आपको सामने दिख रहा है, समझ में आ रहा है पक्का, ओके। अब इसमें जो फर्दर क्वेश्चंस बनते हैं उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। इसका वर्डिंग्स में क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कितना मॉलिक्यूल यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कितने भाई, MCQ में आ गया तो 0। एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने भाई, ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पे जो है, इनकेस अगर मैंने बोल दिया आइसोमर बोल देता हूँ, आइसोमर कितना यहाँ पे 2, स्टीरियो, और दिस इज़ 3D, और आई कैन कॉल इट एज अ स्पेस। कितना आइसोमर है भाई, 2। समझ में आ रहा है, सब एक ही चीज़ है, खाली नाम अलग लिखा है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। नाउ मूविंग अहेड विल गो विद द A3B3 कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। A3B3 को हम लोग कैसे टैकल करेंगे फॉर फाइंडिंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल का, ऑप्टिकल का तो मैंने बता ही दिया है, देयर शुड नॉट बी अ सिमेट्री, सिमेट्री आ गया तो वो ख़त्म उधर ही। सी एग्जाम्पल सेकेंड, कॉम्प्लेक्स है हमारे पास M A3B3, इसको कुछ चार्ज रहेगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे 2 नया चीज़ सीखेंगे, व्हाट इज़ फेशियल आइसोमर एंड व्हाट इज़ मेरिडोनियल, और मर आइसोमर भी इसको बोलते हैं, आइसोमर, ठीक है। सो फेशियल एंड द मेरिडियोनल और मेरिडियोनल आइसोमर्स क्या होते हैं वो जरा हमको देखना है। तो पहले इसका मैं 2 स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सी आपका ये मेटल है, ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस। अब मैंने यहाँ पे कर दिया A and this is your A, this is B, and this is B. So now when the 3 ligands are coming and they are making one phase, जब 3 लिगेंड क्या है ना आपस में जुड़ जाते हैं और एक फेस बना देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेशियल। क्या बोलते हैं भाई, फेशियल। ये आपका क्या है, फेशियल। 3 लिगेंड एक फेस पे आ गए, समझ में आ रहा है। अच्छा मेरे को बताइए ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, आर यू एबल टू से। दिस इज़ द ट्रांस, ये भी ट्रांस है भाई और ये भी ट्रांस है, डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा अब इसके बाद क्या हो रहा है भाई, आपने देखना है कि भाई प्लेनो सिमेट्री आ रही है
यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ जाएगी, सो इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ रही है? जैसे इसका आपने प्लेन बना दिया यहाँ पे, मान लो इसको प्लेन में ले लिया, तो अभी क्या करना है आपको? कट करना है ऊपर से। कट करेंगे तो दो हिस्सा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो मैंने बताया था मॉडल से, इस मॉडल से मैंने समझाया था ना जैसे, ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा वाला बनाता हूँ मैं, दैट इज़ योर मेरिडियोनल। अब मेरिडियोनल में कैसा है कि तीन लिगेंड जो है ना वो एक प्लेन बना देते हैं। सो इट इज़ ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस। तो अभी यहाँ पे आपका मान लीजिए बी एंड दिस इज़ योर ए, ये आपका बी है, एंड दिस इज़ ऑल्सो बी एंड दिस इज़ योर ए। सो इफ़ यू सी देर इज़ अ वन प्लेन का फॉर्मेशन इज़ हैपनिंग। सो थ्री लिगैंड फॉर्म वन प्लेन, दैट इज़, उसको बोला जाता है मेरिडियोनल। इफ़ थ्री लिगैंड फॉर्म्स वन फेस, थ्री लिगैंड फॉर्म वन फेस, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फेशियल। ठीक है। अच्छा मेरे को बता, MA3B3 का GI कितना भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना हो गया भाई? 2। कितना हो गया? 2। बात समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा, अभी इसके अंदर अगर मैंने इसके पहले इसका ट्रिक लगा दिया, क्या लगा दिया? ट्रिक। इसको फाइंड आउट कैसे करना भाई? वो दो लिगेंड का सेट बना के, तो उसका वही दो लिगेंड को साथ में ले लो, ए, फिर क्या बनेगा भाई? ए के साथ में और क्या ले सकते हो? AB, फिर क्या ले सकते हो? AB, फिर क्या ले सकते हो? BB, बराबर ना? ये होगा। फिर अभी क्या करेंगे नेक्स्ट में? AB। देखो दो लिगेंड साथ में आएगा तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा ही नहीं, ख़त्म। ये डिफरेंट आ रहा है, बट ये रिपीट हो गया तो ये भी नहीं दिखाएगा। तो MA3B3 का GI कितना बन रहा है भाई? 2 बन रहा है, ये 2 बनेगा। ये ट्रिक है फाइंड आउट करने का, पक्का? सो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी शोन बाय MA3B3 कॉम्प्लेक्स। अब A2B2C2 को ले लेते हैं। अब A2B2C2 में कैसा ना कि ए का ट्रांस, बी का ट्रांस, सी का ट्रांस, फिर सबका सी और सबका ट्रांस, तो ऐसे मिला के आपको 5 आइसोमर बनने वाले हैं। उसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो आपका हो जाएगा D और L, 2 फॉर्म में मिल जाएगा। सी थर्ड एग्जाम्पल, MA2B2C2 कॉम्प्लेक्स है, इसको चार्ज प्लस माइनस का मैंने लगा दिया। तो अभी कैसा करेंगे हम लोग इसको? ऑल सिस एंड देन ऑल ट्रांस, देन ए का ट्रांस, बी का ट्रांस और सी का ट्रांस। तो ये पहले मैं कर देता हूँ ऑल, दिस इज़ ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस। सो राइट नाउ वी ऑल सिस ले लेते हैं, ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ सिस, दिस इज़ सिस। अभी मैं क्या करता हूँ? ऑल ट्रांस कर देता हूँ। दिस इज़ अ मेटल, दिस इज़ ट्रांस, ए, दिस इज़ ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस एंड ट्रांस, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड सी। ये आपका क्या अभी? ट्रांस है। अब ए का ट्रांस लेंगे, ठीक है, और फिर बी का ट्रांस लेंगे। ए को ट्रांस करके बी को सी से रखो और सी को भी सी से रखो, ऐसे ही दोनों को देख लेंगे। तो ध्यान से देखिए, दिस इज़ योर ट्रांस, ये दोनों पे हम लोग कोई भी लिगेंड लगा देंगे, बी मान लो लगा दिए, बी एंड बी हियर, देन सी एंड सी। अभी मैंने किसको ट्रांस ले लिया? अभी मैंने मान लीजिए बी को ट्रांस ले लिया, तो जब बी को ट्रांस ले लूँगा तो यहाँ पे मैं किसको लगा सकता हूँ? आई कैन पुट हियर ए एंड दिस इज सी। अभी कौन बच रहा है? सी, तो सी को ट्रांस ले लो, और आपका दो जो है सी एंड सी ट्रांस हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आपने ए और ए लगा दिया, यहाँ पे बी और बी लगा दिया, तो ये आपका पॉसिबिलिटी बन रही है। इसको मैंने मैच कर दिया, मान लीजिए ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। So we have to just see how many optically active are here। तो इसमें से ना एक ऑप्टिकल एक्टिव है, और जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है वो D और L 2 फॉर्म में आ जाता है,
ठीक है। तो अभी जब ध्यान से समझते हैं वो कौन सा इसमें से बन रहा है। तो अगर आपने ध्यान से देखा पहले वाले को, किसको, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले में अगर आपने ध्यान से समझने का कोशिश किया तो ये सी से, इज़ इट ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, सोचिए ऑप्टिकली एक्टिव ये है कि नहीं है। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ सिमेट्री इज़ प्रेजेंट। सी ट्रांस देख लो पहले, इधर कौन है भाई, सी है, इधर कौन है भाई, बी है, इधर ए है, इधर सी है, इधर ए है, इधर बी है। अच्छा, ट्रांसपोजिशन तो क्लियर है। अब क्या करो, अब अगर आपने इस पोजीशन पे ऊपर से कट किया, मान लीजिए ए ऊपर है और बी नीचे, तो जब आप इसे कट करेंगे तो यहाँ ए जाएगा, यहाँ बी जाएगा, यहाँ बी और यहाँ सी जाएगा। सो देर इज़ अ नो पी ओ एस, नो पी ओ एस। अगेन आई रिपीट, इसको आप ये जो वर्टिकल बॉन्ड है ना, इसको आप ए जो है इसको वर्टिकल इमेजिन करिए और बी को डाउनवर्ड इमेजिन करिए। तो जब आपने क्या किया इसको देखिए ज़रा ध्यान से, मान लीजिए ये आपका जो है दिस इज़ योर ए एंड बॉटम में जो है आपका बी है, दिस इज़ ए बी सी सी, दिख रहा है, ए बी सी सी, ये ए और ये नीचे बी है। अब मैंने ऐसे कट किया तो ये तो पूरा सेंटर से कट रहा है, दो इक्वल पार्ट में जाएगा, यहाँ पे ए जाएगा, यहाँ पे सी जाएगा, यहाँ पे बी जाएगा और यहाँ पे सी जाएगा, मतलब बोथ द पार्ट्स आर नॉट इक्वल। इस मीन देर इज़ अ नो पी ओ एस, इट मीन्स देर इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आ गई बात। अगर यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो ये दो फॉर्म दिखा देगा, डी एंड एल। क्या दिखा देगा, डी एंड एल। तो मेरे को बताओ जी आई कितना बन गया यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 5, कितना बन गया 5। ऑप्टिकली एक्टिव कितना है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे कितने हैं टोटल, 2 है ना, इसका डी और एल वो ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। अच्छा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये मतलब आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव आपको कितने भाई, 4 हैं। अच्छा मेरे को बताओ आइसोमर्स कितने टोटल, ऑप्टिकल आइसोमर्स, बोलिए बोलिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स तो मिला के आपको 6 बन जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें 2 6। अब वही आपका स्पेस आइसोमर है, वही आपका स्टीरियो आइसोमर है। फिर अगर कोई पूछे इनएंशियोमर्स कितना है, इनएंशियोमर्स यहाँ पे 2 है, और एनांशियोमेरिक पेयर कितना है भाई, एनांशियोमेरिक पेयर जो है वो 1 है। समझा सबको, पक्का, श्योर। अच्छा तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, और जब आप इसके अंदर ट्राई करेंगे टू फाइंड आउट दिस योर नंबर ऑफ जी आई एंड ऑल, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप इसको कर सकते हो, 2 का सेट बना के, ए बी बी सी सी, फिर ए बी रिकॉर्डिंग, फिर ए सी, फिर बी सी। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको जो है टोटल यहाँ पे 5 सेट मिलने वाले हैं। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट हियर। अच्छा अब इसके अलावा जो है हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है। अगर हमारे को 6 का 6 लिगेंड डिफरेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इफ़ वी हैव ऑल द 6 डिफरेंट लिगेंड, तो उसका जो जी आई बनता है वो बनता है 15, कितना बनता है 15, इसको रट्टा मार लो। ऑल द 6 डिफरेंट लिगेंड्स आर देयर, देन वी हैव अ टोटल 15, हाउ मेनी 15, दिस योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग जरा बाइडेंटेड की भी बात कर लेते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द बाइडेंटेड कॉम्प्लेक्स। बाइडेंटेड कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा है दिमाग इसमें लगता है, थोड़ा सा ये जेई में आ भी गया है, 2015 का क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको शायद दिख जाएगा उसमें। बाइडेंटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका ए एम ए बी ट्वाइस C2 है, इसको प्लस माइनस चार्ज मैंने लगा दिया है। अच्छा अब आपको बताना है कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब पहली बात तो देखो जो है ना वो ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें तो दिखाना ही चाहिए। अगर ये सिमेट्रिकल बन रहा है तो उसमें कायरल सेंटर आएगा तब दिखाएगा। ये मेटल लीजिए आपका, जस्ट मिनट, दिस इज़ योर मेटल, दिस इज़ ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस, दिस इज़ ट्रांस। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए सी ले लिया है, यहाँ पे आपने सी ले लिया है, ठीक है, तो ये आपका ए बी एंड दिस इज़ योर अगेन ए बी,
ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, मैंने बाइनेटेड में डिस्कस किया, तो ये डी और एल दोनों फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटरचेंज करता हूँ, इसको इधर लेता हूँ। तो एम ट्रांस, अच्छा यहाँ पे आपका सी रखा है, यहाँ पे भी आपने सी रखा है। अब मैंने जब घुमा दिया तो यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, और ये आपका वेज एज इट इज़ है बी, सॉरी इसको भी मैं अगर घुमा देता हूँ ए, सॉरी यहाँ पे बी एंड ए, दिस इज़ कनेक्टेड। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन ओरिएंटेशन, यस। तो ये भी आपका डी और एल दिखाएगा, ऐसा भी बन सकता है ना अभी, ठीक है। फिर थर्ड में क्या होगा, मैंने एक को ही घुमाया और एक को ऐसे ही रखा है, यहाँ पे आपने बी, यहाँ पे ए किया, यहाँ पे बी किया, ये ऐसे ही है। तो थर्ड भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए। थर्ड केस मेटल लेके ट्रांस 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 एंड ट्रांस, दिस इज़ योर सी एंड दिस इज़ योर सी। नाउ हियर वी आर हैविंग ए, दिस इज़ आवर हैविंग हियर बी, ये ए और ये आपका बी। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। सो दिस इज़ ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये तीन आपको ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ये कितना दिखा देगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए, 6 हो गए, 2 2 2, ये भी होगा ना डी और एल का। अच्छा, अगर ये जो है ना ट्रांस में जा रहा है, सिमेट्री वाले में स्ट्रक्चर जा रहा है, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका आ गया ए और ये आपका आ गया बी, दिस इज़, देन अगेन हियर ए एंड हियर बी, दिस इज सी एंड सी। सो इन दिस केस व्हाट कैन हैपन, यू नो, this may or may not be your optically active because we'll have to see their हाँ ये इनएक्टिव हो जाएगा बिकॉज ये ट्रांस पे सेम लिगेंड आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ की ख़त्म होगी। अब अगर आपने क्या कर दिया इसको, ये और ये, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका ए है, तो अभी मैंने क्या कर दिया, अपोजिट सब का सब ट्रांस कर देता हूँ, मेटल हियर, तो सी का सी, यहाँ पे जो है अगर ए है और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी मैंने बी कर दिया और यहाँ पे भी ए कर दिया। तो डोनेटिंग एटम अगर सेम आ गया ना क्रॉस में, ये प्योरली ट्रांस है, ये सी की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रांस है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। तो जी आई कितना बन रहा है यहाँ पे, 5। कितना बन रहा है, 5। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो रहे हैं भाई, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बने, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए,